Hi everyone, I hope my audio and video is clear to all of you. I hope all of you doing well. I am Manoj Sharma from Olive Board and I'm here with this very important session for all of you because RBI has recently turned 90 years old. So that is why uska history, chronology and key contributions, all this becomes very important from your exam point of view. So we are going to do in very much detail about the history of RBI, how it was formed, the key contributions that it has made, the key achievements of RBI, and we have to understand the chronology also, because from your exam point of view such kind of questions can directly be asked, because RBI is I think the most important topic for you for your regulatory exams. So let's not waste time and let's begin with our session. We are going to do this session in two parts. So till 1991 we are going to cover it today, and post 1991 we are going to cover it tomorrow. Fine. So I just want you guys to pay attention, read each and everything carefully, because we have to cover this thing from your exam point of view. This is going to become very important. Okay. So let's go ahead. This is very factual. Key terms, there are going to be a few terms that we will try and understand if you don't know, but otherwise this is going to be completely factual and you have to memorize it. So if you are reading about RBI, if you have a little bit of knowledge about RBI, if you have the knowledge about current events or different institutions that have been formed, then this is going to be quite easy, because we're going to include the period of say 5-year plans, or when was IDBI formed. So these kind of things will be here. If you have an idea, this is going to become very easy for you. Okay, so let's not waste time and let's begin with our session. And before I begin, let me tell you that if you want to download this YouTube class PDF, what you have to do is you have to go on the Olive Board app. So Olive Board app पर जाएं, वहाँ पे there's going to be a separate courses section. Okay, there's going to be courses section, तो यहाँ पे जाएं, and अलग से there's going to be a folder about YouTube class PDF. So यहाँ से you can download these PDFs. ठीक है, so now let's begin with our session. This is how we are going to cover our this is how we are going to cover RBI's history, chronology, achievements, contributions. So till 1991, we are going to cover the first part, and from 1991 onwards we are going to cover the rest of this part. Fine. Okay, so let's start. This is from 1926 to 1935. So you can say this is the pre-independence era. This is the pre-independence era. The talk of Reserve Bank of India started off from the pre-independence period only, from 1926 to 1935. Why 1935? Because in 1934 we had passed RBI Act, the statutory backing for this Reserve Bank of India. We're talking about statutory backing of this Reserve Bank of India. That means a law, an act has been passed, which after which RBI came into force as the central bank of the country. Okay, so if let's go back to 1926, there was this Royal Commission on Indian Currency, which is also called the Hilton Young Commission. So if you've read a little about modern history, you would know what is this Hilton Young Commission. This was established, and this recommended that there should be a central bank which should be called as the Reserve Bank of India. So you can see that the talks had started from 1926 for establishment of RBI. The talks had started from 1926, called the Hilton Young Commission. Then in 1931, Indian Central Banking Inquiry Committee. So there was the Central Banking Inquiry Committee. This revived this issue. So this issue got dead in between. In 1931 again, the Central Banking Inquiry Committee had revived this issue that we need to establish RBI as the central bank for India. Then finally on 5th March 1934, RBI Act of 1934 had been passed, which constitutes the statutory basis on which bank is established. The statutory basis means when an act has been passed, when it has been backed by a law, then we had formed this Reserve Bank of India in 1934. Okay, so this was how this came into being, how this institution came into being. Very important. Okay. Then from 1935 to 1949, let's see this scenario from this time frame.
So 1st April 1935, RBI started commencing its operations. And who was the first governor of the bank? Again, this is also you can say before 1947. You can call this also the pre-independence era only. That means if pre-independence era, then the first governor is going to be a British. So we have the Sir Osborne Smith, the first governor of the bank. And this bank was constituted as shareholders bank. So this is called a shareholders bank. Sir Osborne Smith was the first governor of the bank. Then in 1935, 5th July 1935, scheduled banks required to maintain CRR. So from when did these scheduled banks had to maintain CRR, cash reserve ratio? It had to be met as 5% of their demand liabilities and 2% of their time liabilities. 1935 5th July से CRR मेंटेन करना पड़ेगा सब शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में मेंशन्ड है, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में जो मेंशन्ड है उन बैंक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. They have to keep a percentage of their demand liabilities, a percentage of their time liabilities with द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हम इसे एनडीटीएल कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज. इसको हम टुगेदर कंसिडर करते हैं. इसका परसेंटेज एक ही परसेंटेज अनाउंस की गई है अब अगर हम सीआरआर की बात करें, बट इनिशियली डिमांड लाइबिलिटीज का कुछ परसेंट एंड टाइम लाइबिलिटीज का ये अलग अलग बताया जाता था इनिशियली. नाउ तो वी हैव क्लब्ड इट दैट अ परसेंटेज ऑफ net demand and time liabilities we are going to keep as cash reserve ratio with the RBI. ठीक है. Then in October 1935, London office of Reserve Bank of India had been set up. So there was a London office also of Reserve Bank, but this was closed in 1963. So it was closed in 1963, September 30, 1963. So London branch was opened in October 1935, but it was closed in 1963. Then on 1st November 1936, the first governor, Sir Osborne Smith, he had resigned. He had resigned, which was effective from 1937, July 1. He had resigned as the first governor. Then if we talk about 1937, then RBI, was the banker to the government of Burma as well. So Burma, which is erstwhile Myanmar. So right now Myanmar, but initially it was called Burma. तो बर्मा की ज्यूरिसडिक्शन, बर्मा के गवर्नमेंट का भी जो बैंक था रिजर्व बैंक. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिड नॉट ओनली हैव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंडिया बट इट हैड आल्सो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ म्यांमार, बर्मा. फाइन. And in 1938, January 1938, first Reserve Bank notes had been issued. On 21st June 1938, the failure of Travancore National and Quillen Bank, the largest bank in Travancore region. So पहले जो आपका साउथ में जो रीजन था उसमें उसे ट्रेवेंकोर रीजन कहते थे. तो वहां पे जो आपका ट्रेवेंकोर नेशनल एंड क्विलन बैंक है उसका फेलियर हो गया था. दैट इज व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड लेजिस्लेशन. यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम देख सकते हैं एक बैंक का फेलियर हुआ एंड दैट इज व्हाई देयर वाज नीड फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स. And then in 1939, exchange controls in India under Defense of India rules we had introduced. Exchange controls को हमने introduce किया in September 1939. ठीक है. अच्छा, इसी पीरियड में in 1940, 11th March 1940 में RBI accounting year had changed from Jan December to July June. ठीक है, तो पहले accounting year Jan to December था आरबीआई का, उसके बाद इसको जुलाई टू जून कर दिया गया. इन विच ईयर 1940, 11th March 1940. I have a question for all of you. Write down in the comment section that what is the accounting year of RBI. What is the accounting year of RBI? What is the accounting year of RBI? आप मुझे comment section में लिखकर बताएं कि आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर क्या है, अब क्या है. ठीक है. सो द सिल्वर इन 1940, वी टॉक अबाउट 1940, द सिल्वर रूपी रिप्लेस्ड द क्वार्टरली अलॉय रूपी. 1940 में एक और चीज क्या हुई कि जो सिल्वर रूपी है उसने किसको रिप्लेस कर दिया, क्वार्टनरी अलॉय रूपी को. ठीक है, तो क्वार्टनरी अलॉय रूपी क्या है? राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नो व्हाट इज क्वार्टनरी अलॉय
रुपी, इसको किसने रिप्लेस किया? सिल्वर रुपी ने रिप्लेस किया। ठीक है, सो क्वार्टनरी अलॉय रुपी मींस व्हिच हैज बीन मेड फ्रॉम मेनी काइंड ऑफ मेटल्स, मिक्स ऑफ मेनी मेटल्स, कुछ निकल है, कुछ आयरन है ना, ऐसे करके आपको एक क्वार्टनरी अलॉय रुपी था। So then silver rupee had replaced this quaternary alloy rupee. ठीक है, 1 rupee note had been reintroduced over here. This note had the status of a rupee coin and represented the introduction of official fiat money. अब fiat money क्या है? जो एक legal tender बोल सकते हैं, backed by the central bank, you can say. जो legal tender है वो हमने बोल दिया fiat money. Then 1943, 11th August 1943, we had the first Indian governor, Sir C.D. Deshmukh. You have to remember this. Sir C.D. Deshmukh, the first Indian governor who assumed office of the governor. तो आपने याद रखना है, first governor Sir Osborne Smith, first Indian governor Sir C.D. Deshmukh. ठीक है, in 1944, the security thread on notes introduced for the first time in India as a security feature. तो security thread हमने start किया notes के ऊपर. Then again in 1944, laws relating to government securities and to the management of public debt. The Reserve Bank ने consolidate किया laws related to government securities and public debt को manage करने के लिए on the basis of which act? Public Debt Act of 1944. ठीक है, then in 1945, 9th June 1945, Reserve Bank of India was entrusted with currency and coinage of British military administration of Burma. ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने entrust कर दिया with currency and coinage of the British military administration of Burma as well as banker to Burma. ठीक है, तो बर्मा के लिए बैंकर भी है वो एंड करेंसी एंड कॉइनेज इशू करना की जो जिम्मेदारी है दैट वाज आल्सो गिवन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Then in 1946, अब देखिए हमने डिमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ा है, we know what is demonetization. तो ये एक recent phenomena नहीं है, हमने पहले भी बहुत बार डिमोनेटाइजेशन किया है. For the first time जब हमने किया था तो वो था 1946 में, जब हमने 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज जो है हाई डिनोमिनेशन बैंक कोड्स को, इनको हमने डिमोनेटाइज किया था टू कर्ब अनअकाउंटेड मनी. तो ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए हमने जो ये लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी है 500,000, 10,000 के जो नोट्स हैं उनको डीमोनेटाइज किया था. फाइन. देन इन 1948 आरबीआई सीज्ड टू फंक्शन एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान. तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बर्मा के थे, हम पाकिस्तान के भी सेंट्रल बैंक थे. तो 19 बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, आरबीआई सीज्ड टू बी द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमेंस्ड ऑपरेशंस फ्रॉम 1949. तो यहाँ पे हमने पाकिस्तान से हमारा जो डिस्पैच है वो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में जाके हमने वी सीज टू बी पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, बिकॉज दे आल्सो आफ्टर 1947 दे आल्सो नीडेड टाइम कि किस तरह से अपना सेंट्रल बैंक खुद एस्टैब्लिश करें. तो तब तक 1948 तक, 30 जून 1948 तक आरबीआई वाज ऑपरेटिंग एज द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान एज वेल. अब नहीं. ठीक है, सिंस 1948 नहीं. ठीक है, देन 1949, 1st Jan 1949 को RBI had been nationalized. तो ये तो I think everybody knows when was RBI nationalized? In 1949, 1st January 1949. And then 16th March 1949 में हमारे पास आया बैंकिंग कंपनीज एक्ट. तो अभी तो क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है अभी तो, बट इनिशियली it was the Banking Companies Act of 1949 which had been formed. Okay, and then this had formed the statutory basis of bank supervision and regulation in India. तो बैंकिंग सुपरविजन के लिए हमने बैंकिंग कंपनीज एक्ट बनाया 1949. एंड यहाँ पे हमने SLR भी इंट्रोड्यूस कर दिया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया. नाउ इन द कमेंट सेक्शन आई आल्सो वांट यू गाइस टू राइट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SLR एंड CRR. SLR और CRR के बीच में क्या डिफरेंस है, अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है. ठीक है, सो SLR रिक्वायर्स बैंक्स टू मेंटेन लिक्विड एसेट्स. दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1949. और फिर बैंकिंग कंपनीज एक्ट को भी हमने रीनेम कर दिया एज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. ठीक है, तो अभी ये किस नाम से जाना जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949.
क्लियर बात, क्लियर है? सो ये था आपका पीरियड टिल 1949. सो आई होप दिस इज क्लियर. फ्रॉम 1926 टू 1935, आई होप इट्स क्लियर. देन फ्रॉम 1935 टिल नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, यानी कि 1949 में नेशनलाइजेशन. अब हमने यहाँ पे 1926 से 1935 क्यों देखा? क्योंकि 1934 में आरबीआई एक्ट हैड बीन पास्ड एंड ऑफिशियली आरबीआई बिकेम द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री. फिर 1935 से हमने 1949 तक क्यों देखा? क्योंकि 1949 से पहले ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था, हमने शेयर होल्डर्स बैंक जिसे हम कहते हैं. एंड इन 1949 इट हैड बीन नेशनलाइज्ड, इसीलिए हमने इसे सेकेंड एरा में बांट दिया. आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन हम 1950 से लेके हम डेकेड वाइज चलते हैं टुवर्ड्स अ प्लान्ड इकोनॉमी. 1960 तक देखते हैं हम आरबीआई का क्या सिनेरियो रहा. In October 1950, Department of Banking Development was created and इसका एक न्यू पोस्ट था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट भी बना दिया था. इन्हें हमने अलग से डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग डेवलपमेंट. ठीक है. इन 1951 आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट, तो यहाँ पे जो एक्ट था ये आरबीआई में, उसमें हमने अमेंडमेंट की एंड वी enabled the bank to become banker to part B states. तो हमने यहाँ पे पार्ट बी स्टेट्स का बैंकर बन गया था आरबीआई. अच्छा, अब जो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, तो ऐसे 4 टाइप्स में जब हम इनिशियली व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस आर कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू पार्ट ए, बी, सी, डी स्टेट्स. तो ऐसे हमने डिवाइड किया था कौन से कमिश्नर की प्रोविंसेस हैं, कौन से प्रिंसली स्टेट्स हैं. तो जो आपका पार्ट बी था वो प्रिंसली स्टेट्स थे. प्रिंसली स्टेट्स वर पार्ट ऑफ पार्ट बी. तो इस तरह से हमने पार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. बाद में बिफोर द बाइफर्केशन ऑफ आवर कंट्री इनटू डिफरेंट स्टेट्स वी हैड द डिवीजन अमंग पार्ट ए, बी, सी एंड डी, दी स्टेट्स. ठीक है. तो पार्ट बी स्टेट्स कौन से हो गए? जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो हो गए प्रिंसली स्टेट्स, वो हो गए पार्ट बी स्टेट्स. ठीक है. फर्स्ट 5 year plan was also launched in 1951. I think everybody knows about this as well. फर्स्ट 5 year plan 1951 में लॉन्च हो गया था. अच्छा, फिर 1 Jan 1952 में बिल मार्केट स्कीम हैड बीन इंट्रोड्यूस. तो बिल मार्केट स्कीम थी, दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. किसने इंट्रोड्यूस की थी? टू इनेबल बैंक्स टू ऑब्टेन एडवांसेस फ्रॉम द रिजर्व बैंक. तो अगर आपने एडवांस लेना है रिजर्व बैंक से तो उसके लिए बिल मार्केट स्कीम इशू हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी. It was aimed at allowing currency to expand to meet seasonal requirements. तो अगर आपकी सीजनली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप इस स्कीम के थ्रू पैसा अवेल कर सकते हैं. Then on 1st August 1952 we had the State Financial Corporations Act of 1951 which came into effect. तो State Financial Corporations Act of 1951, इसमें क्या है कि जो state governments हैं, they enable these governments to establish finance corporations for meeting the credit needs. तो ये MSMEs के लिए है, medium and small scale जो industries है उनके लिए हमने State Financial Corporation को ये एक्ट पास किया जिसमें हमने फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को एस्टैब्लिश किया जो क्या हेल्प करेंगे? इन मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करेंगे बाय प्रोवाइडिंग देम विद क्रेडिट. ठीक है. फिर 1954 अगस्त 1954 में ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी रिपोर्ट हैड बीन सबमिटेड. सो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे की रूरल एरियाज में क्रेडिट का क्या सीन चल रहा है उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है जो सबमिट होगी. Its recommendations led to bringing rural credit onto the center stage of central bank activism. ठीक है. तो rural credit की बात की यहाँ पे and this also led to the formation of State Bank of India. ठीक है. सो 1954 में बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू बैंकिंग पर्सनल. तो ये एस्टैब्लिश हुआ बैंकिंग ट्रेनिंग कॉलेज, बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज एस्टैब्लिश किया. व्हाई? टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द बैंकिंग पर्सनल. और ये कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में, इन मुंबई इनॉग्रेट हुआ. क्या इनॉग्रेट हुआ? बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज. ठीक है. तो यहाँ पे 1 अप्रैल 1955 में जो हली सिक्का रुपीज है, हली सिक्का रुपीज ये हैदराबाद स्टेट में एक करेंसी थी. वहां पे हैदराबाद स्टेट की रीजन स्पेसिफिक करेंसी थी ये हली सिक्का रुपीज. It had a circulation of about rupees 48 crores. ये ceased to be a legal tender. तो जो हली सिक्का रुपीज है पहले ये लीगल टेंडर थे, हैदराबाद स्टेट के थे ये. हमने इसको हटा दिया कि ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. अब इंडियन रुपीज विल बी द लीगल टेंडर. सो INR इज गोइंग टू बी द लीगल टेंडर फॉर ऑल ओवर इंडिया. ठीक है. फिर 1 जुलाई 1955 को क्या हुआ?
जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इट गॉट कन्वर्टेड टू अ स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन एंड ये हम बन गया हमारा एसबीआई। तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई हैड बीन फॉर्म, जो अर्स्टवाइल क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। A major one of the main objectives was to establish additional branches, particularly at district headquarters. तो हमने इसके branches भी लेकर आने हैं। And second 5-year plan was also introduced in 1955. ठीक है, तो 5 years का प्लान है। तो फर्स्ट 1951 में हो गया था शुरू, सेकेंड 1955 से कमेंस हो गया था, जुलाई 1955। ठीक है, फिर 1956 में 17 मई 1956 में हमने सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स को स्टार्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड मुझे बताएं कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। Write in the comment section and let me know that what are selective credit controls. So this is one of your qualitative tools, है ना, जब हम monetary policy tools की बात करते हैं, qualitative tools and quantitative tools। तो quantitative हो गए जैसे CRR, SLR हो गया, qualitative हो गए selective credit controls, margin requirements, है ना। So you are going to tell me in the comment section because this is part of your static portion. So ये आपको पता होना चाहिए, you have to write it in the comment section and do let me know what do you mean by selective credit control. I also asked you about CRR, I also asked you about SLR, तो आप selective credit control की भी आप मुझे बताइए, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, फिर हमने 1956 6 अक्टूबर 1956 में हमने चेंज किया। पहले हम प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को फॉलो करते थे, अब हम मिनिमम रिजर्व, वी स्टार्टेड फॉलोइंग मिनिमम रिजर्व सिस्टम फ्रॉम 1956 ऑनवर्ड्स। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का क्या मतलब है, कुछ परसेंटेज हमने पैसा साइड पे रखना है एज रिजर्व्स फॉर अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस, है ना। यही मतलब है मिनिमम रिजर्व सिस्टम का एंड हम इसी को फॉलो करते हैं फिलहाल। ठीक है, सो आपके प्रोपोर्शनल सिस्टम जब था उसमें क्या था कि प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में कुछ प्रोपोर्शन ऑफ योर टोटल मनी या फिर कुछ परसेंटेज ऑफ द टोटल मनी आपको साइड पे रखना था, बैक्ड बाय गोल्ड या फिर फॉरेन रिजर्व्स। अब क्या है, हमने कुछ मिनिमम अमाउंट रखना है साइड पे। मिनिमम अमाउंट हमने अगर रख दिया, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें तो 200 करोड़ है, उसमें से 115 करोड़ आपका गोल्ड में होना चाहिए, इफ यू नो अबाउट दिस। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या है, कुछ अमाउंट यू हैव टू कीप ऑन अ साइड, उसके ओवर एंड अबव आप इशू कर सकते हैं जितना भी ज्यादा आप क्रेडिट क्रिएट करना चाहते हैं, पैसा इशू करना चाहते हैं, उसके अबव आप कर सकते हैं, बस मिनिमम एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दीजिए। पर प्रोपोर्शनल वाला काफी रिजिड था, उसमें आपको कुछ परसेंटेज साइड में रखना ही है, बैक्ड बाय गोल्ड एंड फॉरेक्स रिजर्व्स। एंड फिर जो टोटल है, फॉर एग्जांपल 100% टोटल है, 40% आपने साइड पे रखा, तो आप सिर्फ बाकी के 60% पे ही आप एक्स्ट्रा आप इशू कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते। मिनिमम में ऐसा नहीं था, मिनिमम में आपको कुछ अमाउंट साइड पे रखनी है, उसके अलावा यू कैन इशू एज मच एज यू नो एज यू वांट, उसके बाद आप इशू कर सकते हैं। तो ये फर्क है बिटवीन minimum and proportional. So initially we were following this rigid practice of proportional reserve system and now we are following this minimum reserve system, and till now we have this minimum reserve system as well. अच्छा, फिर है 1959 में क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट ऑफ 1959। इसमें क्या हुआ, इट मेड द बैंक्स ऑफ द erstwhile princely states of India सब्सिडरीज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जब हमने ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई सब्सिडरीज बैंक्स एक्ट ऑफ 1959 बनाया, तब जो ये प्रिंसली स्टेट्स थे, जो पहले प्रिंसली जो स्टेट्स है उसमें जो बैंक्स थे उनको क्या कर दिया, हमने सब्सिडरीज बना दिया है एसबीआई का। ठीक है, सो दैट वाज टिल 1960। आई होप दिस इज क्लियर। सो वी हैव सीन द फर्स्ट 3 phases। पहला हमने देखा फ्रॉम 1926 to 35, देन 35 to 49, देन 50 to 60। अब हम 60 to 71 का फेज देख लेते हैं। ठीक है, देन मई 1960 में क्या हुआ, लक्ष्मी बैंक, देयर वाज दिस लक्ष्मी बैंक व्हिच फेल्ड, यहाँ पे फेलियर हुआ लक्ष्मी बैंक का। एंड देन देयर वाज आल्सो फेलियर ऑफ पलाई सेंट्रल बैंक। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस। व्हाट डू मीन बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस, कि जो आप डिपॉजिट्स अपना पैसा बैंक के पास कर रहे हैं उसको आप इंश्योर करवा सकते हैं थ्रू दिस डिपॉजिट इंश्योरेंस, की बाई चांस अगर बैंक का फेलियर होता है तो एटलीस्ट आप ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस जो आपने कराई है आपको अपना पैसा वापस मिल सकता है इफ इन केस द बैंक फेल्स। इसीलिए आफ्टर दिस फेलियर ऑफ लक्ष्मी बैंक एंड दिस फेलियर ऑफ पलाई सेंट्रल बैंक, there was this introduction of deposit insurance in India.
फिर 1960 में ही क्या हुआ, पॉलिसी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड कंपल्सरी अमेलगमेशन ऑफ बैंक्स, ये इंट्रोड्यूस हुए, यानी कि कैसे हम बैंक्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सके, उससे रिलेटेड बातें हुई, एंड कैसे हम अमेलगमेशन कर रहे हैं बैंक्स का, इकट्ठे कर रहे हैं बैंक्स को, उसकी बात करी, मर्जर्स एंड ऑल की बात की. So if you see from 1960 to 1982, over 200 banks were merged or liquidated. लिक्विडेटेड मतलब खत्म कहानी उनकी करना या फिर उनको मर्ज करना किसी और के साथ, ये दो चीजें हुई थी ताकि हम थोड़ा और एफिशिएंट कर सके बैंकिंग सिस्टम. Then in 1961 we had the third five-year plan. It had commenced in 1961. फिर 7 दिसंबर 1961 को जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया इन इंडिया. तो ये डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए डिपॉजिटर्स का पैसा, ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं उसमें उनमें कॉन्फिडेंस बना बना रहे, एंड टू फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स एज वेल. अब क्या है कि इनके इतने फेलियर्स के बाद पीपल दे डिड नॉट वांट टू कीप देयर मनी इन द बैंक्स ओनली, इसलिए उनको डिपॉजिटर्स को अश्योर करने के लिए कि ठीक है आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, आप इंश्योर करवाइए, इंश्योरेंस लीजिए अपने पैसे की, डिपॉजिट्स की इंश्योरेंस लीजिए. ठीक है. देन मई 1962 में क्या हुआ, न्यू बैंक ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी. इसमें हमने स्ट्रेस ले किया इन ओपनिंग ऑफिसेज इन अनबैंक्ड एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज. तो यहाँ पे हमने अंडर डेवलप्ड एरियाज की फर्स्ट टाइम बात की 1962 कि हमें बैंक्स ओपन करने चाहिए अनसर्व्ड और अंडर डेवलप्ड एरियाज में भी. ठीक है. सो 1962 में हमने फिर सीआरआर को फिक्स कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया हमने. 3% ऑफ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जो हम आज देखते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, बस उसी की बात कर रहे हैं कि पहले अलग था, डिमांड लाइबिलिटीज के लिए अलग, टाइम लाइबिलिटीज का अलग परसेंटेज. अब हमने इन दोनों की परसेंटेज को एक कर दिया, तो सीआरआर हमने फिक्स कर दिया 3%, और वो वेरी कर सकता है बिटवीन 3 to 15%. इतनी हमने फ्लेक्सिबिलिटी रख दी कि मैक्स टू मैक्स 15%, मिनिमम से मिनिमम 3%. ठीक है. Then 1962 में RBI Act empowered the bank to collect information regarding credit facilities granted by individual banks and financial institutions. तो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बैंक कलेक्ट कर सकता है, आरबीआई कलेक्ट कर सकता है. टर्म क्रेडिट जो इंफॉर्मेशन है उसको भी एनलार्ज कर दिया गया था यहाँ पर. ठीक है. फिर 1962 में जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था दैट हैड बीन अमेंडेड. अब जो शेड्यूल्ड बैंक्स है दे हैव टू मेंटेन मिनिमम लिक्विड जो एसएलआर है नॉट लेस देन 25%. तो यहाँ पे एसएलआर को फिक्स कर दिया एट 25% ऑफ व्हाट, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज. ठीक है. तो 25% आपको एसएलआर में रखना है. अच्छा. देन 1 जुलाई 1962 को एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज आल्सो सेट अप टू प्रोवाइड रीफाइनेंस. तो ये क्या है, एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है. मतलब कि रीफाइनेंसिंग का क्या मतलब है, दैट डायरेक्टली कस्टमर्स को नहीं दे रहे, पहले ये फाइनेंस कर रहे हैं किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, और फिर ये जाकर फाइनल कंज्यूमर्स को पैसा दे रहे हैं. तो मतलब फाइनेंसिंग द बैंक आप कह सकते हैं, बैंक को ही पैसा देना इज व्हाट इज कॉल्ड रीफाइनेंसिंग. इसको हम ऑनवर्ड लेंडिंग के लिए जो पैसा देना है उसे वो भी कहते हैं ऑन लेंडिंग, या ऑनवर्ड लेंडिंग के लिए जो पैसा देना है उसको भी हम ये रीफाइनेंसिंग के नाम से जानते हैं. क्लियर है ये बात. Then on 26 August 1963 staff training college was established at Madras. ठीक है. तो यहाँ पे स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए हमने कॉलेज एस्टैब्लिश किया. 1 फरवरी 1964 को आरबीआई एम्पावर टू रेगुलेट डिपॉजिट एक्सेप्टेंस एक्टिविटीज. तो जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है उनकी जो डिपॉजिट एक्सेप्टेंस एक्टिविटीज है उसको भी कौन अब रेगुलेट करेगा. सिंस 1964, 1 Feb 1964 आरबीआई इज गोइंग टू रेगुलेट दिस डिपॉजिट एक्सेप्टेंस. ठीक है. देन फरवरी 1964 को ही यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई, Unit Trust of India was established to extend facilities for an equity type investment to small investors. जो small investors है उनको equity type investment provide करने के लिए और उनके resources को mobilize करने के लिए और उस पैसे को investment में channelize करने के लिए, economy को की growth को stimulate करने के लिए, facilitate करने के लिए we had this UTI, Unit Trust of India, which was established. ठीक है. Then again 1 July 1964 को IDBI was also established. Industrial Development Bank of India was also established in 1964. तो ये क्या, एक subsidiary of RBI. So IDBI was established as a subsidiary of RBI.
And why was it established? To provide long-term industrial finance. This was provided to provide long-term industrial finance. फिर 1965 नवंबर 1965 को क्रेडिट रेगुलेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड. क्रेडिट रेगुलेशन भी इंट्रोड्यूस किया टू अलाइन ग्रोथ ऑफ बैंक क्रेडिट विद प्लान रिक्वायरमेंट्स, and this later evolved into the credit authorization scheme. So credit authorization scheme में ये evolve हुआ, ठीक है, जो ये credit regulation है. Then 1966 में जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम के ऑपरेशंस है, दे वर आल्सो ब्रॉट अंडर दिस एम्बिट ऑफ आरबीआई. ठीक है, आरबीआई और बैंकिंग लॉज के अंडर ही हम कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम के जो ऑपरेशंस है उसको ले आए. And then 6 June 1966, rupee was devalued by 36.5%. Very important, remember this. Rupee was devalued. यहाँ पे devaluation की बात कर रही है. Devaluation और depreciation के बीच में आपको difference पता होना चाहिए है. I hope you know the difference. Devaluation क्या है? जो deliberately central bank करता है, and depreciation automatically from market demand and supply forces की वजह से होता है. Devaluation और depreciation मतलब value कम हो जाती है हमारी करेंसी की, and this leads to an increase in exports. कैसे? For example, मान लीजिए $1 is of ₹50. अब हमने इसको devalue किया, devalue होके ये क्या हो गया? $1 is equal to ₹60. यानी कि पहले $1 को यूज करके आप ₹50 का सामान खरीद सकते थे, अब $1 को यूज करके वी कैन बाय ₹60 वर्थ ऑफ गुड्स. दैट मीन्स अब हम कम पैसे से ज्यादा इंडियन रुपीज के गुड्स खरीद पा रहे हैं. इससे क्या होगा? दैट इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. तो यहाँ पे हमने बूस्ट देना था एक्सपोर्ट्स को, दैट इज व्हाई वी डीवैल्यूड आवर करेंसी. हमने रुपी को डीवैल्यू किया बाय 36.5%. US dollar which earlier was equivalent to 4.75 अब 7.50 रुपीस तक हो गया in 1966. Then in 2nd July 1966 हमने क्या किया? 12 state cooperative banks were included in second schedule of RBI Act. तो जब हम scheduled banks की बात करते हैं, scheduled का मतलब क्या होता है? Those banks which are listed in second schedule of RBI Act, है ना? तो हमने 12 state cooperative banks को इस लिस्ट में डाल दिया था in on 2nd July 1966. ठीक है, फिर now let's talk about this era from 1968 to 1985. तो 1968 से 1985 के बीच में चलते हैं. 1967 में क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल कंट्रोल्स ओवर बैंक्स, ताकि हम वी कैन सिक्योर अ बेटर अलाइनमेंट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. सोशल कंट्रोल्स मतलब उनको इनडायरेक्टली कंट्रोल करना, क्वांटिटेटिव नहीं, सोशली कंट्रोल करना बैंक्स के ऊपर, ताकि वो अलाइंड रहे बैंकिंग सिस्टम के साथ. 1967 22 दिसंबर 1967 में ही there was this national credit council which was set up. किस लिए? To assist RBI and the government. क्रेडिट को एलोकेट करने के लिए कहाँ कहाँ पे एलोकेट करना है, कौन सी प्रायोरिटीज होनी चाहिए है, ऑन ऑल इंडिया बेसिस हमने नेशनल क्रेडिट काउंसिल को सेटअप किया. क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हियर? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड ये क्रोनोलॉजी आपको समझ आ रही है. रियली होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, फिर 1 सितंबर 1968 को वी हैड पास दिस गोल्ड कंट्रोल एक्ट. किस लिए? टू ब्रिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रोल ऑन अ परमानेंट स्टैट्यूटरी फुटिंग. तो जो कंट्रोल से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हमने एक स्टैट्यूटरी फुटिंग देनी है, इसलिए हमने गोल्ड कंट्रोल एक्ट लेकर आए. ठीक है, 1968 में एक्सपोर्ट क्रेडिट इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में 1968 वाज इंट्रोड्यूस्ड. किस लिए? एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 1968 हैड बीन लॉन्च्ड इन 1968. अच्छा, 29th Jan 1969 में वी हैड सेट अप दिस बैंकिंग कमीशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो बैंकिंग कमीशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड बीन सेट अप. किस लिए? रिपोर्ट करने के लिए बैंकिंग कॉस्ट, legislations affecting banking, indigenous banking, bank procedures, non-banking financial intermediaries. इसके लिए हमने एक कमीशन सेटअप की ताकि वो इन सब चीजों पे रिपोर्ट बनाए. फाइन. Then on 19th July 1969, 14 major Indian scheduled commercial banks, 14 major Indian scheduled commercial banks with deposits of over 50 crores, इनको हमने nationalize किया.
तो हमने काफी 14 बैंक्स को हमने नेशनलाइज किया। आई थिंक दिस एवरीबडी नोज। 1969 में हमारी फर्स्ट नेशनलाइजेशन बैंक्स हुई। सेकंड किस ईयर में हुआ, सेकंड नेशनलाइजेशन किस ईयर में होगा, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि सेकंड जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स है सेकंड फेज में कब हुआ था, विच ईयर। ठीक है, सो 14 मेजर इंडियन शेड्यूल्ड बैंक्स दे वर nationalized in 1969। किस लिए? टू सर्व बेटर द नीड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, देन 1969 से 24 सितंबर को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट एस्टैब्लिश हुआ। कहाँ पर? बॉम्बे में, मुंबई में एस्टैब्लिश हुआ। एंड ये पुणे कैंपस शिफ्टेड टू पुणे कैंपस इन मिड 1980। ठीक है, तो पहले मुंबई में था, फिर हमने इसे पुणे कैंपस पे शिफ्ट कर दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। ठीक है, फिर 29 सितंबर को कोऑपरेटिव बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड एट पुणे। तो पुणे में कोऑपरेटिव बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड। लेटर इसको हमने रीनेम कर दिया एज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग इन 1974। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग को हमने इसमें रीनेम कर दिया। क्लियर? अच्छा, 1969 में हमने ये लीड बैंक स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया। वी इंट्रोड्यूस दिस लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम क्या है? हमने एक बैंक को लीडर बना दिया ताकि वो सुपरवाइज कर सके बाकी बैंक्स को, और जो रूरल और स्पेशली अंडर सर्व्ड एरियाज है वहां पे सर्व कर सके। ठीक है, ताकि हम जो क्रेडिट गैप्स है इकोनॉमी में उसको फुलफिल कर सके। दैट इज व्हाई वी हैव दिस लीड बैंक स्कीम व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 1969 इन दिसंबर। Then on 1st January 1970 जो SDR हैं they were created by IMF. I hope you know what are special drawing rights. ठीक है, तो ये कुछ हम वर्चुअल रिजर्व एसेट्स बोल सकते हैं उनको। ये वर्चुअल रिजर्व एसेट्स है, ठीक है, जो क्रिएट किए गए हैं IMF ने। सो इट डिपेंड्स ऑन 5 करेंसीज। जो इंटरनेशनल करेंसीज है उसका हमने वेटेड एवरेज निकाला, एवरेज निकाल के हमने SDR को डिफाइन किया। तो ये वर्चुअल रिजर्व एसेट्स है ऑफ IMF. I'm not going to go in very much detail of this because this is an entire topic which we cover in international organizations in your ESI portion जो RBI का है। ठीक है, तो वहां पे ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है created by IMF कब? 1970, on 1st Jan 1970. Then in January 1970 only, ये जो RBI है it had prescribed for the first time minimum interest rate to be charged by banks. यानी कि उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी कि आप इससे नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं चार्ज कर सकते, इतना तो आपने चार्ज करना ही करना पड़ेगा। तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट वर डिसाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय आरबीआई। देन February 1970 में एग्रीकल्चरल क्रेडिट बोर्ड वाज सेट अप विद गवर्नर एज द चेयरमैन, ताकि हम पॉलिसीज को रिव्यू कर सके, फॉर्मुलेट कर सके। एग्रीकल्चर क्रेडिट बोर्ड वाज सेट अप। रूरल क्रेडिट से रिलेटेड अगर हमने कोई चीज डिस्कशन करनी है तो वो यहाँ पे हमारे लिए हमारे पास है हमारा एग्रीकल्चर क्रेडिट बोर्ड विच वाज सेट अप। ठीक है, तो गवर्नर इसका चेयरमैन रहा है। अच्छा, then on 1st November 1970 new bills rediscounting scheme was introduced, flexibility impart करने के लिए in the money market। तो ये रीडिस्काउंटिंग स्कीम क्या है? रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है? रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, व्हाट आर रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स? तो क्या है? सपोज ए और बी ने आपस में ट्रेड, सपोज ये बिजनेस ए है, ये बिजनेस बी है। ए ने बी से कुछ खरीदा, ठीक है, ए हैज टू पे मनी टू बी एंड बी ने इससे क्या करना है? गुड्स बेचना है। फॉर एग्जाम्पल ए ने अभी पेमेंट नहीं की, पेमेंट के बजाय एक लिख के दे दिया, एक बिल लिख के दे दिया दैट आई हैव टू पे यू दिस मच अमाउंट, मैं आपको 1 महीने बाद पे करूंगा। ए ने ऐसे बोल दिया बी को, लेकिन बी ने शिप कर दिया अपने गुड्स ए को। अब बी से गुड्स भी चले गए, उनको पैसा भी नहीं आया, लेकिन उनके पास ये रिसीवेबल है, ये बिल है पड़ा हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है। अब इस बिल को ले जाकर बी क्या कर सकता है? अगर इमीडिएटली उनको पैसा चाहिए, बी ये वाला बिल क्या करेगा? बैंक को देगा, बैंक को देगा कि आप ये बिल रखो, जब भी वो पैसे लौटाएगा आप उससे ले लेना, आप मुझे ये पैसा मुझे आप दे दीजिए। ठीक है, तो एट अ डिस्काउंट, फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 का बिल है, आप ये बिल लेकर गए बैंक के पास, अब बैंक तो आपको इमीडिएटली लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, तो आपको 10,000 के बजाय 9,000 बोलेगा कि आप अभी अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो आप 9,000 लो, ठीक है, और मेरे को बिल दीजिए। पर इसको बैंक को मिलेंगे 10,000 ही उससे, ए से।
बट क्योंकि इमीडिएटली लिक्विडिटी चाहिए थे बी को, दैट इज वाई उन्होंने उसको दे दिया एट, तो इसे डिस्काउंट करके दिया, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो यहाँ पे न्यू बिल्स रीडिस्काउंटिंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर दिस ओनली, फॉर दिस पर्पस ओनली, ताकि लिक्विडिटी, इमीडिएट लिक्विडिटी हम मेंटेन कर सकें, लिक्विडिटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने आपके बिजनेस की बात करी, सिमिलरली ऐसे बैंक्स भी होते हैं, तो बैंक्स भी अपने बिल्स रीडिस्काउंट करवा सकते हैं आरबीआई से। ठीक है, जैसे ये बिजनेस है वैसे दो बैंक्स भी हो सकते हैं, राइट। फाइन, देन इन 1971, 14 जनवरी 1971 को क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड। क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971, किस लिए? टू फैसिलिटेट बैंक लेंडिंग्स टू द प्रायोरिटी सेक्टर। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है उनको लेंडिंग करने के लिए वी हैव दिस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, फिर 12 अप्रैल 1971 को जो इंडस्ट्रियल सिकनेस से रिलेटेड कंसर्न्स हैं उसकी वजह से इंडस्ट्री हमारी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी, इस वजह से वी हैड दिस इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए हमारे पास ये इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैड बीन फॉर्म। फिर 1971, ऑन 1 जुलाई 1971 हमने जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर है वी एक्सटेंडेड दिस टू द कोऑपरेटिव बैंक, सो वी एक्सटेंडेड दिस डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर टू द कोऑपरेटिव बैंक्स। 1971 में ही अगस्त में कन्वर्टेबिलिटी ऑफ यूएस डॉलर हैड सस्पेंडेड, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली जो ब्रेटन वुड सिस्टम है, ब्रेटन वुड सिस्टम का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने क्या किया था, हम पेग करते थे अपनी करेंसी को डॉलर के साथ। तो दिस पार्ट ऑफ योर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो हम जैसे अपने सिलेबस में भी स्टडी द टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम्स, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग, ये पढ़ते हैं हम। सो पहले वी यूज्ड टू फॉलो दिस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें हम एक गोल्ड स्टैंडर्ड पढ़ते हैं और एक हम पढ़ते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम। सो जो ब्रेटन वुड सिस्टम में हम अपनी करेंसी को पेग करते थे, फिक्स करते थे, किसके साथ? डॉलर के साथ। ठीक है, तो अब उस टाइम पे डॉलर का इश्यू हो गया था, डॉलर कुड नॉट बैक इट अप। ठीक है, तो वो बैक नहीं कर सकता था, डॉलर की कमी हो गई थी, तो वहां पे दिस ब्रेटन वुड सिस्टम हैड कोलैप्स्ड यहाँ पे। ठीक है, एंड यूएस डॉलर के साथ जो कन्वर्टेबिलिटी है रुपी की वो हमने सस्पेंड कर दी थी एट इन 1971 इन ऑन 15th अगस्त। फिर 25th मार्च 1972 में वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम। सो दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड जिससे कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स ऑन एडवांसेस, जो एडवांस पे ले रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रेट्स कंसेशनल रेट पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो कम इंटरेस्ट रेट पे लो इनकम ग्रुप्स को दे सकते हैं। डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम मतलब कि बेस्ड ऑन आप किसको दे रहे हैं, लो इनकम ग्रुप को दे रहे हैं या हाई इनकम ग्रुप को दे रहे हैं, आप अपना इंटरेस्ट रेट को डिफरेंटली चार्ज कीजिए। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दोज हु आर हाई इनकम ग्रुप्स और जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू लो इनकम ग्रुप्स। ठीक है, उनको कम रेट पे, कंसेशनल रेट्स पे आप उनको पैसा दें। ठीक है, लोन्स प्रोवाइड करें। ठीक है, क्लियर है। देन 3 अप्रैल 1972 में इंपोर्ट पॉलिसी फॉर 72 to 73 स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ अचीविंग सेल्फ रिलायंस। यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट पॉलिसी आई थी। ठीक है, 1972-73 में एक इंपोर्ट पॉलिसी आई फॉर सेल्फ रिलायंस, सो दैट वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। 1973 में एक बहुत मेजर इशू हुआ ऑफ ऑयल क्राइसिस, ऑयल शॉक हुआ, जब जो ऑयल प्राइसेस है वो क्वाड्रपल हो गए। ऑयल प्राइसेस एट क्वाड्रपल, डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो गए, ग्लोबल रिसेशन हो गया 1973 में, कॉल मनी रेट राइज हो गया, इट वाज एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 30%। कॉल मनी रेट मतलब जो ओवरनाइट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जब हम पैसा ले रहे हैं कॉल मनी मार्केट से, उसका जो रेट है बहुत बढ़ गया, एज हाई एज 30%। ठीक है, एंड दीज इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को इंटरवीन करना पड़ा था, उन्होंने सीलिंग रेट इसको कम किया और 15% पे सेट किया कि इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इतना ज्यादा इशू हो गया था इन 1973। ठीक है, फिर 1973 1 सितंबर को क्या हुआ, मिसलेनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज
Reserve Bank Direction of 1973. So we had released these directions किस लिए? To regulate the acceptance of deposits by companies. तो अगर वो इन्वॉल्व है प्राइस चिट्स में, लकी ड्रॉ, सेविंग स्कीम, इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, तो हम जो डिपॉजिट्स है उनको रेगुलेट करेंगे. Fine. Then in November 1973, restrictions on SBI and subsidiaries, SBI और उसके subsidiaries में हमने restrictions को remove कर दिया था. To bring them on par with other commercial banks. तो हमने जो SBI पे restrictions है उसको और subsidiaries को हमने remove किया in 1973. Then 1974 1st Jan को Foreign Exchange Regulation Act of 1973 came into force. ठीक है, तो फेरा एक्ट आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, यानी कि हमने फॉरेन एक्सचेंज को किस तरह से रेगुलेट करना है, मैनेज करना है, रेगुलेट करना है फॉरेन एक्सचेंज को, यहाँ पे इट केम इनटू फोर्स एंड इसके एडमिनिस्ट्रेशन वाज एंट्रस्टेड विद आरबीआई. ठीक है, फिर 13 दिसंबर 1974 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974, ये हमने अमेंडमेंट लेकर आए आरबीआई एक्ट, और यहाँ पे हमने बैंक की पावर्स को वाइडन किया इन दिस अमेंडमेंट. ठीक है, एंड देन 9th August 1975 को टंडन कमिटी रिपोर्ट हैड बीन रिलीज्ड, जिसमें हमने बात किया दैट वी नीड टू कोरिलेट बैंक क्रेडिट टू द बिजनेस प्रोडक्शन प्लान. तो जो भी हम क्रेडिट लेकर आ रहे हैं, जो क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक, वो रिलेट करना चाहिए हमें बिजनेस और प्रोडक्शन प्लान्स के साथ, रिलेट करना चाहिए और रिसोर्सेज के साथ कोरिलेट करना चाहिए ऑफ द बोरोवर्स. जो बोरो कर रहे हैं, हम उनके जो प्लान्स है कि कहाँ पे उन्हें इस पैसे को यूटिलाइज करना है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए है. That means focus should be shifted from security based to need based approach to bank credit. कि जहाँ पे ज्यादा जरूरत है, जहाँ पे प्रायोरिटीज है, वहां पे ज्यादा ये जो पैसा है वहां जाना चाहिए. ठीक है, रादर देन सिक्योरिटी, कौन ज्यादा सिक्योरिटी या कोलैटरल रख पा रहा है. ठीक है, एंड देन 25th September 1975 exchange value of rupee was linked to movements in a basket of selected foreign currencies. यानी कि अब हम रूपी को सिर्फ एक करेंसी के साथ नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम इफेक्टिव, हैव यू हर्ड अबाउट दिस इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सिस्टम? नीर रीर आपने सुना होगा, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. तो एक तो होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, एक होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. जब हम एक्सचेंज रेट सिंपल नॉमिनल या फिर रियल एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, रियल एक्सचेंज रेट जहाँ पे इफेक्टिव वर्ड नहीं है, वहां पे हम सिर्फ 1 on 1 देख रहे हैं. 1 US dollar इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, या फिर 1 euro इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, इस तरह से देख रहे हैं हम अलग अलग करके. जब हम इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, नॉमिनल हो या रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, तो हम रुपी को अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ देखते हैं कि कितना हमारी वैल्यू है. तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू है उसको लिंक किया था हमने अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसीज के साथ, आगे सिर्फ एक के साथ, हमने काफी सारी अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ हमने इसे लिंक किया था. ठीक है, फिर 26 सितंबर 1975 को जो आरआरबीज है, रीजनल रूरल बैंक्स, दे वर आल्सो सेट अप. तो रीजनल रूरल बैंक रूरल पीपल को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए हमने ऑल्टरनेटिव एजेंसीज बनाई, जिनको हमने कहा रीजनल रूरल बैंक्स. अच्छा, इससे रिलेटेड रिसेंटली न्यूज भी आई है कि हमने आरआरबीज को मर्ज करना है ना? तो आपने उस न्यूज को भी देख लेना है कि व्हाट इज इट रिलेटेड टू. मर्जर ऑफ आरआरबीज की बात की गई है, राइट? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, देन 1st November 1975 को फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट स्कीम, तो फॉरेन करेंसी जो नॉन रेजिडेंट्स के लिए हम एक अकाउंट स्कीम लेके आए थे, व्हिच इंट्रोड्यूस्ड यूएस डॉलर, ताकि हम प्राइवेट रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड को इनकरेज कर सके, ताकि हमारे पास ज्यादा रेमिटेंसेस आए, इसीलिए वी ब्रॉट इन फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट स्कीम. Then on 16th November 1975, जो ARC है आपकी एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन, इट वाज रीनेम्ड एज एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. तो आपकी जो एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसको हमने रीनेम किया, और एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको हमने रीनेम इस तरह से कर दिया. फिर 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम हैड बीन लॉन्च, 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम. 1976 में 1st Feb को ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट स्कीम हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड. एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम थी ये, ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट स्कीम.
है ना, ड्यूटी को कम करना, ड्रॉबैक करना। 1976 में विलेज अडॉप्शन स्कीम फॉर बैंक्स हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड। 1977, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रैल 1977 में हमने M1 M2 M3 जो हम मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई पढ़ते हैं एज आर सिलेबस, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इन 1977। तो मनी सप्लाई इन द पब्लिक कैसे डिफाइन किया हमने मनी सप्लाई को? करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक, स्टेट, सेंट्रल, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सैलरी अर्नर्स सोसाइटीज, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो ये सब था पार्ट ऑफ योर योर मनी सप्लाई। तो इसमें हमने मेजर्स ऑफ जो मनी सप्लाई देखते हैं वो इसमें 1977 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, फिर 1977 अगेन यहाँ पे वी हैव दिस इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP हैड बीन इनिशिएटेड। तो ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, 1977 में लॉन्च हुआ था। फिर 16 जैन 1978 को नोट्स ऑफ 1000, 5000, 10,000 these were demonetized। तो सेकंड टाइम में हम डिमोनेटाइजेशन देख रहे हैं यहाँ पे 1978 में, ताकि जो इलिसिट ट्रांसफर ऑफ मनी हो रही है, ब्लैक मनी जो ट्रांसफर हो रही है, इलीगल मनी जो ट्रांसफर हो रही है, उसे हम कर्ब कर सके। इसलिए जो हायर डिनोमिनेशन है 1000, 5000, 10,000 के जो डिनोमिनेशन है उनको हमने खत्म कर दिया, डिमोनेटाइज कर दिया। ठीक है, फिर 1978 3 मई 1978 को आरबीआई कमेंस्ड गोल्ड ऑक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गोल्ड ऑक्शंस को शुरू किया। 27 मई 1978 को डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन took over the undertaking of credit guarantee corporation। ठीक है, एंड इसीलिए फिर क्या बना? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। पहले ही अलग अलग थे, डिपॉजिट इंश्योरेंस अलग था, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अलग था। हमने इकट्ठे मिलके वी हैव दिस DICGC जिसकी हम बात करते हैं, DICGC राइट नाउ 1978 से नाउ वी हैव डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अब अभी कंटिन्यूसली अगर हम प्रेजेंट की बात करें, सो वी हैव दिस फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस। ठीक है, फिर 3 जून 1978 को आरबीआई एक्ट हैड बीन अमेंडेड अगेन। These were made mainly to enable more effective utilization of foreign exchange reserves। कैसे हम foreign exchange reserves को और भी effectively utilize कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 1978 3 जून को we had got this RBI Act amended। Clear? Then 30th March 1979 में penalty for non-compliance of CRR and SLR was introduced कि अगर आप CRR और SLR नहीं रख रहे हैं साइड में, you're not able to comply with this CRR and SLR amount, then you are going to face penalty। ठीक है, you are going to face penalty। तो यहाँ पे अनाउंस किया गया था for the first time on 30th March 1979। ठीक है, क्लियर है ये बात? Then 1979 में again rural planning and credit cell setup in RBI। So rural planning और credit cell setup ये हमने किया था in the RBI to ensure proper implementation of credit in rural areas। फिर 1979 अगस्त में credit information review had started being published every month। So credit information से related review हमने publish करना शुरू किया every month। किस लिए? To disseminate in simple language without delay क्रेडिट और बैंकिंग पॉलिसी जो डिसीजन है आरबीआई के, वो हम ताकि इजी लैंग्वेज में इजीली लोगों तक पहुंचा पाए, इसलिए हमने क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू को पब्लिश करना शुरू किया एवरी मंथ। फिर 1980 में 17 जन 1980 में इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस दे सोर टू ऑल टाइम हाई। इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई पहुंच गए थे। ठीक है, 1980 मार्च 1980 में बैंक्स they were required to provide financial support to implement this 20 point program। तो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम वीकर सेक्शंस के लिए था, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए जो बैंक्स है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट अपना प्रोवाइड करना ही है। एंड यहाँ पे 6 5-year प्लान वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन 1980। एंड 1980 में हमें ये भी पता है कि 15 अप्रैल 1980 को 6 मोर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। सो आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन फ्यू स्लाइड्स बैक, है ना? तो 1980 में भी जो सेकेंड राउंड था ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वो भी हमने शुरू किया था इन 1980। 1969 में फर्स्ट हमने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया एंड 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। करंटली कितने बैंक्स नेशनलाइज्ड हैं? करंटली हाउ मेनी बैंक्स आर नेशनलाइज्ड एज ऑफ नाउ?
नेशनल बैंक्स कितने हैं करंटली? 12 हैं हमारे पास। हमने उस टाइम पे 69 और 80 को मिला के 20 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, लेकिन बाद में हमने मर्जर्स एंड ऑल किए। उसके बाद अब करंटली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं इन इंडिया। तो ये आपको कुछ बेसिक चीजें यू शुड बी नोइंग अबाउट दीज, ठीक है? Then Shore, whatever you can call it, this committee related to cash credit system had been adopted. इसका क्या emphasis रहा था? On increasing contribution for working capital requirements by borrowers. ठीक है, so 1980 में ये हुआ था. Then 1981, 1st Jan 1981 को neighborhood travel scheme had been introduced. 1981 अप्रैल 1981 में ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग रिजर्व बैंक में हमने न्यू डिपार्टमेंट्स को सेटअप किया था. जो ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग है वो हम लेकर आए थे इन यू कैन से 1981, अप्रैल 1981. ठीक है, फिर इसी साल में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत हाई हो गए थे. एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन ट्रेड फॉलोइंग द हाइक इन ऑयल प्राइसेस. बैंक रेट को हमने रेज कर दिया टू 10%. सीआरआर को हमने रेज कर दिया टू 7.5%. एसएलआर को हमने एज हाई एज 35%. इतना ज्यादा हमने बढ़ा दिया था. इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गए थे बिकॉज ऑफ अ हाइक इन द ऑयल प्राइसेस. ठीक है, देन 1 जनवरी 1982 को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक. तो एग्जिम बैंक आपका कब बना? 1982 में. टू प्रोवाइड financial and allied services to exporters and importers. We have this Exim Bank. When was it established? 1982, 1st Jan 1982. और इसी दिन 20-point program was announced by the Prime Minister. 12 जुलाई 1982 को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सो नबार्ड भी आपका कब एस्टैब्लिश हुआ? 1982 को. तो नबार्ड और एग्जिम बैंक दोनों ही कब एस्टैब्लिश हुए? 1982 को. नबार्ड इज ऑल्सो व्हाट? अ रीफाइनेंसिंग एजेंसी. अ रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये एजेंसी है नबार्ड. ठीक है, फिर 1983 नवंबर 1983 में नेशनल क्लियरिंग सेल वाज सेट अप बाय बैंक. किस लिए? टू इंट्रोड्यूस मैकेनाइज्ड चेक प्रोसेसिंग एंड नेशनल क्लियरिंग ऑफ चेक्स. तो हमारे पास क्या है? ये क्लियरिंग हाउस बन गया था इन 1983. ठीक है, 1984 में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1983 वाज दिस अमेंडमेंट वाज मेड इन 1983. ठीक है, तो इसमें क्या है? 1984 सॉरी 12 जन 1984 को हम अमेंडमेंट लेकर आए थे. एंड इसमें क्या किया हमने? वाइडन की एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स कि अब वो लीजिंग, नॉमिनेशन, फैसिलिटेशन ऑफ फैसिलिटीज टू अकाउंट होल्डर्स दे कैन प्रोवाइड. दे स्ट्रेंथन द पावर्स ऑफ आरबीआई, स्ट्रीमलाइन रिटर्न्स एंड प्रोहिबिटेड अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज. तो इस हम क्या किया हमने? बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट में हम मतलब चेंजेस लेकर आए. And then on 1st Feb 1984, Urban Banks Department was formed to supervise the affairs of urban cooperative banks. So urban cooperative banks के लिए Urban Banks Department was formed ताकि हम उसे supervise कर सकें. ठीक है, फिर फर्स्ट में 1984 को ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसको हमने रेज किया टू ₹50 crore. तो यहाँ पे हमने 1984 में हम ये लेकर आए थे. ठीक है, सो दिस इज टिल योर 1985. ठीक है, फिर 1985 से अगर हम 1991 की बात करें, यहाँ पे अब देखिए इवन इन माय क्लासेस आई टेल यू कि आपको जो मेजर लिबरलाइजेशन है वो 1991 में नहीं बल्कि 1980s में ही शुरू हो गया था. लिबरलाइजेशन मेजर्स राजीव गांधी जी ने अपने लिबरलाइजेशन मेजर्स को शुरू कर दिया था इन 1980s ओनली. ठीक है, सो 1985 में 10th अप्रैल 1985 को एस चक्रवर्ती कमेटी वाज सेट अप. किस लिए? टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ मॉनेटरी सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे दिस कमेटी वाज एस्टैब्लिश मॉनेटरी सिस्टम को रिव्यू करने के लिए. मिड 1985 तक जो हमारा एसएलआर और सीआरआर है इट एक्सीडेड 45%. तो आप देखें एसएलआर और सीआरआर कितना ज्यादा 45% रखना शुरू कर दिया. फिर आपके 1986 में 182 डे ट्रेजरी बिल्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया. 1987 में 1987 में
Board for Industrial and Financial Reconstruction was set up, and this became operational with effect from May 1987. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सिकनेस के लिए हमने ये जो बोर्ड फॉर इंटरनेशनल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को हमने सेटअप किया। मार्च 1987 में मैग्नेटिक इंक चार्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ये MICR टेक्नोलॉजी के यूनिकली हम जो आपके नोट्स है उस पे एक जो इंक है उसका यूज किया गया, मैग्नेटिक इंक चार्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी चेक क्लियरिंग के लिए। ठीक है, तो चेक्स पे आपका जो ये इस तरह से इंक का यूज किया जाता है, MICR टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ताकि हम मैकेनाइज कर सकें चेक क्लियरिंग ऑपरेशंस को। फिर IGIDR इन 1987 28 दिसंबर 1987 हमने IGIDR इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च इसको भी एस्टैब्लिश किया था। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक। ये एक एडवांस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, स्टडीज का इंस्टीट्यूट है ये, ताकि हम रिसर्च कंडक्ट कर सके ऑन डेवलपमेंट इश्यूज फॉर अ मल्टी डिसिप्लिनरी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फिर 1988 में अप्रैल 1988 में सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। अप्रैल 1988 में ही डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, DFI, Discount and Finance House of India was also set up. National Housing Bank भी जुलाई 1988 में as apex body of housing finance, ये बहुत important है। SEBI, Discount and Finance House of India, National Housing Bank ये भी established था। फिर Stock Holding Corporation of India Limited अगस्त 1988 में ये एक depository institution ने अपना commence किए थे operations। अक्टूबर 1988 में मैक्सिमम लेंडिंग रेट हैड अबॉलिश्ड। ठीक है, मैक्सिमम लेंडिंग रेट की मैक्सिमम कितना आप किस रेट पे लेंड कर सकते हो उसको हमने अबॉलिश कर दिया। अब जो बैंक्स हैं वो अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से अकॉर्डिंग टू देयर क्रेडिट रिकॉर्ड, कम ज्यादा जैसे करना है वो कर सकते हैं खुद बैंक्स। फिर 1989 में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर्स, हम आपके मॉनेटरी पॉलिसी जो इंस्ट्रूमेंट्स है सॉरी मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें है ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर्स, इनको इंट्रोड्यूस किया। 1989 अप्रैल में बैंकिंग पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल लॉज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 वाज इनैक्टेड। किस लिए? ताकि हम चेक्स को यूज करना शुरू करें, जो कल्चर ऑफ चेक्स है उसको यूज करना शुरू करें। ठीक है, फिर 1989 में सर्विस एरिया अप्रोच फॉर रूरल लेंडिंग बिकेम ऑपरेशनल। सर्विस एरिया अप्रोच, रूरल लेंडिंग के लिए सर्विस एरिया अप्रोच हमने चालू की कि किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करनी है एरिया वाइज रूरल एरियाज को। देन CRR 1989 में 1 जुलाई 1989 CRR रेज टू 15%। ठीक है, SLR एंड CRR टू ओवर 53%। आप देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया CRR और SLR, पहले 45% किया इतना बढ़ा के, फिर हमने 53% कर दिया। फिर 1990 15 में 1990 को एग्रीकल्चर एंड रूरल डेट रिलीफ स्कीम ऑफ 1990 प्रोवाइडिंग डेट रिलीफ अप टू ₹10,000 टू स्मॉल बॉर्डर्स। तो ये डेट रिलीफ स्कीम है, किस तरह से हमने जो स्मॉल बॉर्डर्स है उनका डेट को हमने रिलीव कर देना है, कोई बात नहीं चलो ठीक है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक से चलो ठीक है नहीं दे पाए कोई बात नहीं, रिलीफ प्रोवाइड कर दो उनको, उन्हें डेट से हटा दो, उसको उनको डेट बर्डन से हटा दिया जाए। ठीक है, सो ये था आपका till 1991. अब 1991 से 2000 we are going to do it in the next class. So I hope you have understood this thing. आज हमने RBI की हिस्ट्री देखी हमने कि कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, 1926 से 1935 तक देखा हमने, फिर 1935 से 1949 तक देखा, फिर हमने देखा 1950 to 60, फिर 60 to 71, फिर 68 to 1985, then 85 to 1991. अब फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी 1991 ऑनवर्ड्स क्या सीन रहा, आरबीआई ने क्या चेंजेस लेकर आए, करंट क्या चेंजेस हैं, वो सब हम आपके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। डाउनलोड दिस पीडीएफ, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फ्रॉम द ऑलिव बोर्ड ऐप। वहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में जाए, वहाँ अलग से यूट्यूब क्लास पीडीएफ का फोल्डर है, वहां से यू कैन हैव एक्सेस टू दीज यूट्यूब क्लास पीडीएफ। ठीक है, तो आप इसका एक्सेस लीजिए, आप इसे इसे डाउनलोड कीजिए एंड रिवाइज इट, बार बार इसको रीड कीजिए, जो मेजर पॉइंटर्स है उनको ध्यान में रखिए, बिकॉज डायरेक्टली कई बार आपको एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं।
इसी तरह से we are going to cover the next portion as well. So I hope you are going to watch this video and इसे ढंग से देखिएगा, इस पे रिवाइज कीजिएगा इसको, and we are going to meet in the next session. If there's any doubt, you can always ask me in the comment section. Comment section में लिखिए, and let's end the session over here. Thank you so much. Take care. Have a nice day. Keep studying, and all the best to all of you. Thank you so much, and take care. Bye bye.